ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اسلحے کے انبار سے مروب ہوں گے، نہ دھمکیوں کی پرواہ ہے۔ پاکستان امن پسند ملک، جنگ تھوپی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں۔ بالا کوٹ میں عملی مظاہرہ بھی کر چکے۔ 6 ستمبر 1965 کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ آج بھی ناپاک عزائم ملیا میٹ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ 5th جنریشن وار ملک اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش عوام کے تعاون سے ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ، کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور اصرار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور جذبہ احسار کا حامل۔ قوم سے محبت پاک فوج کے ایمان کا حصہ، کوئی بھی اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف اعصاب شکن جنگ لڑی، کرونا اور ٹڈی دل جیسی آفتوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ اب امن کو خوشحالی اور ترقی میں بدلنے کے لیے مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ آرمی چیف کا خطاب۔ یوم دفاع پاکستان GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرت و بہادری کی نئی داستانیں رقم کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ شہداء اہل خانہ کی بھی شرکت۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم دفاع پر GHQ میں پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ تمام بیسز اور چھاؤنیوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ یوم دفاع، مسار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ اصغر خان اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال
मज़ार इकबाल पर भी तकरीब, डीजी रेंजर्स की हाजिरी, पंजाब रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। शुहदाए वतन को सलाम। अज़ली दुश्मन आज भी साजिशों में मसरूफ है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। यौम दिफा के मौके पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा और हम गरीब की आवाज़ हैं। हमने 14 वज़ारतें की हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कोई इसकी मिसाल नहीं है कि किसी शख्स ने 14 वज़ारतों के कलमदान संभाले हों। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी वज़ारत में वो निशान छोड़े हों जिससे नैब जिंदा हो जाए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 14 वज़ारतें संभाल चुका, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं, मेरी तरह किसी को अल्लाह ने नहीं नवाजा। शेख रशीद का अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई से खिताब, एक और किताब लिखने का ऐलान, क़ारीन से पढ़ने की भी दरख्वास्त। साफ करेंगे मगर इंसाफ के साथ साफ करेंगे। आप किसी का घर नहीं गिराएंगे, आप किसी का घर नहीं गिराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो तो किसी का घर को कुछ नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ देते हो वफाक से आपका NSC भी छीन के रहेंगे। दहशत गर्दों का राज खत्म, अब शहर की तरक्की पर काम करेंगे। अवाम साथ दें तो वफाक से NFC भी छीन लेंगे। इंसाफ के साथ नाले साफ करेंगे, नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के न्यू कराची समेत कई इलाकों के दौरे। ये शहर जो है वो 90% से ज़्यादा सिंध की हुकूमत के रेवेन्यूज़ देता है। हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सच बोलिए, जो बात है उतना बताइए। सिंध सूबे और पाकिस्तान की लीडरशिप का फ़र्ज़ है कि ये कर्ज जो कराची के ऊपर बनता है इसको उतारा जाए। इसको करने के लिए कोई सियासत नहीं है। कराची के मंसूबे मुकम्मल कराने के लिए सियासत को अलग रखना होगा। बिलावल भुट्टो का क्लिप सामने आया कि वफाक सिर्फ 300 अरब लगा रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 62% फंडिंग वफाक और 38% सिंध की रखी गई है। हकायक मस्ख करने की इजाजत नहीं देंगे। असद उमर, अमीनुल हक और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध भर में बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। ग्रेड 21 के इफ्तिखार शिलवानी कराची के मुंतज़िम आला मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज दहशत गर्दों को शिकस्त देने वाली दुनिया की वाहिद फोर्स है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का यौम दिफा पर पैगाम। शहबाज शरीफ की लाहौर में यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने वाले हीरोज़ को सलाम। कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे, लीगी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए जो तन मन धन लगाएगा उसके साथ खड़े हैं। रॉ की गोद में पलने वाले किसी फर्द को इजाजत नहीं देंगे कि पाक फौज के खिलाफ साजिश करे। फैयाजुल हसन चौहान का रावलपिंडी में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, चक्री सेक्टर में फिर गोलाबारी।
भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज, जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करने का मुतालबा। और यौम दिफाए पाकिस्तान साइकिल रेस साजिद अली ने जीत ली। राइडर्स ने कौमी जज्बे के साथ पेशावर से नौशहरा तक का फासला तय किया। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि 6 सितंबर 1965 को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 5th जनरेशन वॉर मुल्क और फौज को बदनाम करने की साजिश है और अवाम के ताउन से इसे नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। जम्मू और कश्मीर पर किसी भी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। असलहे के अंबार से मरूब होंगे, ना दुश्मन की धमकियों की परवाह है। जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं। मुमल्लिक पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलंबरदार हैं। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साज़ों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफ़वाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस ख़तरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। गुज़श्ता 20 सालों में हम बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। मशरकी और मगरबी सरहदों पर हालत जंग का सामना रहा। ज़लज़ले और सैलाब जैसी आजमाइशें भी दरपेश रहीं। दहशतगर्दी और शिद्दत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने आसाब शिकन जंग लड़ी। हाल ही में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दिल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद ख़ित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले करते हैं। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शह रख करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कॉल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफ़वाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक ना हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR की जानिब से बताया गया कि शुहदा, गाजियों के अहले खाना और हाजिर सर्विस अफसरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने जुर्रत का मुजाहिरा करने वाले अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने 40 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ISPR का बताना है कि 24 अफसरों और जवानों को तमगा बसालत दिया गया। एक जवान को यूनाइटेड नेशन मेडल से नवाजा गया है। शहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए हैं। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो फौजी एजाज़ात देने की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, ISPR की जानिब से बताया गया है कि शहदा, गाजियों के अहले खाना और हाजिर सर्विस अफसरान ने इस तकरीब में शिरकत की। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर तकरीब हुई। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी मरकजी तकरीबात हुई।
یوم دفاع اور یوم شہدائے پاکستان پر شہر شہر بڑی تقریبات، شہداء کو سلام پیش۔ GHQ راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔